محمد بلند تر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وآوانے ولا تجعلنا من اعدائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آج کی مجلس چونکہ منسوب ہے عباس علمدار سے، عباس علمدار کو پروردگار عالم نے باب الحوائج کا لقب قرار دیا ہے. چونکہ عباس کی کوئی حسرت پوری نہ ہو سکی اس وجہ سے پروردگار نے عباس کو باب الحوائج قرار دیا. آج کا دن کے صدقے میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنی دعائیں یہاں پر طلب کی جائیں پروردگار ان دعاؤں کو مستجاب کرے، حاضرین مجلس کی تمام مشکلات کو آسان کرے، ہر پریشانی کو دور کرے، مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اعلی علیین میں جگہ عطا کرے، ائمہ کا قرب و جوار عطا کرے، حوض کوثر سے سیراب کرے. ہم سب کو بھی موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد ہم تمام کی مغفرت کرے، برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، وحشت قبر کو دور کرے، قبور میں سرور کو داخل کرے، برزخ کی ہر موقف ہر گھاٹی میں سیدہ کی چادر کا سایہ ہمارے سروں پر رہے. اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار ان کے جانثاروں میں شمار کرنا، اور اگر ہم مر جائیں تو ہمیں ہماری قبور سے اٹھانا تاکہ امام علیہ السلام کی نصرت و حمایت کر سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد. ایک مرتبہ بلند ترین حیدری صلوات. جو گزشتہ مجالس میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ ہماری بحث زیارت وارثہ پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آ کر قبر امام حسین علیہ السلام پر قبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر جب امام علیہ السلام کو سلام کیا تو امام علیہ السلام انہیں وارث آدم قرار دے رہے ہیں، وارث نوح نبی اللہ قرار دے رہے ہیں، وارث ابراہیم و وارث موسیٰ و عیسیٰ و محمد و علی علیہ السلام قرار دے رہے ہیں. اور ہماری گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام تک آ کر رکی تھی. کل تھوڑا سا جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. چونکہ انبیاء کی وراثت کی بات ہو رہی ہے توجہ چاہوں گی. ہم نے ذکر کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں 3 خواتین کا کردار بہت مضبوط نظر آتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. ایک تو خود موسیٰ کا کردار ہے، معصومہ نہیں ہے، کسی
ऐसा नहीं है कि इस्मत के दर्जे पर फाइज हों, लेकिन कुरान क्या कहता है कि इन्ना औहैना इला उम्मे मूसा, गोया कि किरदार जब पाकीज़ा हो जाता है, हाँ, अमल के अंदर जब पाकीज़गी आ जाती है तो वो इस दर्जे पर इंसान पहुंच जाता है कि परवरदिगार उसे वही करता हुआ नजर आता है। इन्ना औहैना इला उम्मे मूसा, हमने उम्मे मूसा की तरफ वही की, और वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो परवरदिगार ने दी हैं वो किसे दी हैं? वो उम्मे मूसा को दी हैं, जनाब मूसा की वालिदा को दी हैं कि आपने क्या करना है। इस वक्त तो माहौल यही है कि तमाम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, 60,000 बच्चों को कत्ल किया जा चुका। अब आप क्या कीजिए कि परवरदिगार का ये अम्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएँ और इस दुनिया से को अदल और इंसाफ से पुर करे। ए उम्मे मूसा, ए मादर मूसा, अब आपका काम है कि आपने इसको बचाने के लिए एक वसीले का किरदार अदा करना है। हुक्म दिया कि ए उम्मे मूसा, आप इस बच्चे को एक संदूक में डालिए और उसे नहर के दरियाए नील के सुपुर्द कर दीजिए। हाँ, कई दफ़ा निजात इस चीज़ में होती है कि उसे नील के समंदर के अंदर उस बच्चे को डाल दिया जाए तो निजात इसी का नाम है। जिस तरह के बाज़ औक़ात हम लोग समझते हैं कि शिफा इसी चीज़ का नाम है कि बस दवा खाई, बुखार था, वो उतर जाए, इस चीज़ का नाम शिफा है। हालांकि उलमा ने क्या कहा कि बाज़ औक़ात मौत भी शिफा का ही दूसरा नाम है। इसी तरह उस वक्त निजात इस चीज़ में थी। निजात इस चीज़ में नहीं थी कि मादर मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखती, बल्कि निजात इसमें थी कि आप अपने बच्चे को संदूक में डालें और उसे नील की लहरों के सुपुर्द कर दें। वहाँ पे दूसरा किरदार जो हमें नज़र आता है वो खाहर मूसा का है, जो कि हज़रत मूसा की बहन है। अब उम्मे मूसा तो अपने घर में है, लेकिन वहाँ पर खाहर मूसा का क्या किरदार है सिर्फ इतना नज़र आता है, लेकिन कुरान की आयात में उनका जिक्र होता है। वो क्या है कि जहां जहां वो ताबूत जा रहा है, ताबूत या वो संदूक जो भी चीज़ है, वो बॉक्स जो है वो दरिया की लहरों के और उन मौजों के ऊपर है, लेकिन जो उनकी बहन है वो साथ साथ दरिया के किनारे चलती जा रही हैं। न जाने कितने दूर तक चल कर गई होंगी। बहरहाल वो संदूक कहाँ पर जाकर रुकता है? खुद फिरौन के दरबार में जाकर रुकता है कि जहाँ पर जनाब आसिया अपनी कनीज़ों के साथ वहाँ पर मौजूद है। अब जब देखती हैं वहाँ पर हमें तीसरी खातून का किरदार नजर आ रहा है। अभी खाहर मूसा वहां पर ही मौजूद है। तीसरी खातून कौन है? जनाबे आसिया बिनते मज़ाहिम, जो कि फिरौन की जोजा है। जब उन्होंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत बच्चा है जो कि संदूक में है, चूंकि परवरदिगार ने आसिया को कोई औलाद अता नहीं की थी, शायद फिरौन की और भी अजवाज हो, चूंकि रिवायात अभी आगे बताती हूँ उससे पता चलता है कि फिरौन की एक बेटी भी थी। हो सकता है कि उसकी कोई और भी बीवियां हों, कुछ कनीज़ें हों जिससे उसकी औलाद हो, लेकिन जनाबे आसिया से उसकी कोई औलाद नहीं है। ये इतनी प्यारी जोजा है फिरौन के लिए कि ये क्या कहती हैं कि ए फिरौन, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को पालूं। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे पालूं। पहले तो क्या करता है फिरौन? इनकार करता है। हाँ, इनकार करता है, लेकिन जब जनाब आसिया का इसरार बढ़ता है तो फिरौन भी इस बात पर राजी हो जाता है। वही फिरौन जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की खातिर जिसने 60,000 बच्चों को कत्ल किया, वही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का कफील बन जाता है और उसी महल में, उसी कसर में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की मंजिलों तक पलते हैं। कल भी आपके सामने अर्ज किया कि जनाबे आसिया का क्या किरदार है कि परवरदिगार ने कुछ खवातीन को तमाम खवातीन पर फोकियत अता की है, फजीलत अता की है, बरतरी अता की है। उनमें से एक जनाबे आसिया बिनते मज़ाहिम हैं तो किसकी जोजा? फिरौन की जोजा। फिरौन के घर में रह रही हैं, उसका माल खा रही हैं, लेकिन कितनी बड़ी मुवहिद है, कितनी बड़ी तौहीद परस्त है कि कुरान क्या कहता है, जहां पर हजरत लूत और हजरत नूह की अजवाज को, इन दोनों की बीवियों को परवरदिगार ने काफिरों के लिए मिसाल करार दिया, वहां पर परवरदिगार क्या कहता है? ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन, के परवरदिगार ने
उन लोगों के लिए कि जो कि ईमान की मंजिल पर फाइज हुए। अब यहाँ पर परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि वो खातून है या वो मर्द है, लिल्लज़ीना आमनू। जहाँ पर भी कुरान में जमा का सीगा आया है वहाँ पर मर्द मुराद नहीं है, वहाँ पर इंसान मुराद है। और इंसान में कौन आता है? मर्द भी आते हैं और खवातीन भी आती हैं। इतनी बाअज़मत खातून, तवज्जो, इतनी बाज़मत खातून कि परवरदिगार क्या कहता है? ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू। वो लोग जो कि ईमान के दर्जे पर फाइज हुए, जिनके पास ईमान की कुव्वत और ताकत मौजूद है, परवरदिगार ने हज़रत आसिया को उन तमाम मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी एक मिसाल करार दिया है। इस जनाब आसिया ने क्या किया? ऐसा क्या किया कि परवरदिगार मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए जनाब आसिया को एक मिसाल, एक रोल मॉडल करार दे रहा है। वहाँ पर अगर हम तारीख़ का मुताला करें, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एक मरतबा चूँकि फ़िरऔन की एक माशता जिसे कहा जाता है, फ़िरऔन की बेटी की माशता, माशता का मतलब है यानी आजकल के ज़माने में अगर उसे इंग्लिश में कहा जाए तो ब्यूटिशन, यानी जिसका काम है कि वो फ़िरऔन की बेटी के बालों को संवारा करती थी, हेयर स्टाइल बनाया करती थी, यूँ समझ लीजिए। वो सियाना जो है वो भी कौन है? मुवहिद है। एक मरतबा क्या हुआ कि सियाना फ़िरऔन की बेटी के बालों को संवार रही थी कि एक मरतबा उसके हाथों से कंघी गिर गई। अब जब कंघी गिरी तो उसने फ़ौरन अल्लाह का नाम लिया, हाँ अल्लाह का नाम लिया। तो फ़िरऔन की बेटी फ़ौरन कहती है कि ये तुमने मेरे बाप को पुकारा है, तवज्जो, ये तुमने मेरे बाप को पुकारा है। क्योंकि उस ज़माने में, कल भी अर्ज़ किया था, उस ज़माने में सिर्फ फ़िरऔन ही था जो कि ये दावा करता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। कहा कि ये तुमने मेरे बाप को पुकारा है। तो उन्होंने, सियाना ने आगे से कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे बाप को नहीं पुकारा, मैंने उस खालिक हकीकी को पुकारा है जो वाक़यान इबादत के लायक है। अब फ़िरऔन की बेटी फ़ौरन जाती है और जाकर फ़िरऔन को बताती है कि ये जो सियाना है ना, ये कौन है? ये मुवहिद है, हाँ ये परवरदिगार पर ईमान ले आई है। फ़िरऔन से उसको बुलाता है और पूछता है कि बताओ क्या ऐसा ही है? कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फ़िरऔन कहता है क्या सियाना तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा? इस अकीदे से बाज आ जाओ। लेकिन सियाना मानती नहीं है, तवज्जो, सियाना मानती नहीं है। अब एक बहुत बड़ी आग को रोशन किया जाता है और सियाना के रिवायत में कहते हैं कि 4 या 5 बच्चे हैं। और फ़िरऔन ये कहता है कि ए सियाना, अगर तुम मुझ पर ईमान ना लाई, ये ना कहा कि मुझे रब ना माना, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक एक करके तुम्हारे हर बच्चे को आग में डाल दूंगा। और सियाना वहाँ पर भी क्या कहती है? वो इस्तिकामत का पहाड़ बनी हुई है, हाँ अल्लाह पर ईमान लाई हुई है। कहती है कि ठीक है, तुम मेरे बच्चों को चाहे जला दो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ये नहीं कहूँगी कि तुम रब्बे आला हो, क्योंकि मैं परवरदिगार की तौहीद की कायल हूँ। बहरहाल उस वक्त क्या हुआ कि फ़ौरन फ़िरऔन ने आग को रोशन करवाया। एक बच्चे को डाला, दूसरे बच्चे को डाला, तीसरे बच्चे को डाला, चौथे को डाला। जो आखिरी बच्चा था ना, वो शिरखार बच्चा था। जाहिर है माँ कितना भी सब्र कर ले, कितना भी बर्दाश्त कर ले, जब उस छोटे से बच्चे को आग में डालने लगी तो एक मरतबा माँ का दिल थोड़ा सा वो पसीजा, हाँ। तो वहाँ पर रिवायात क्या कहती हैं कि वो बच्चा गोया होता है और कहता है कि ए माँ फिक्र न करो, तुम हक पर हो, हाँ तुम हक पर हो। सारे बच्चों को जला दिया गया। इसको बंद कर दीजिए, हीटर बंद कर। सब बच्चों को जला दिया गया। और इस सियाना का मकाम क्या है? उस दिन आपके सामने जनाब जुबैदा का जिक्र किया। इस सियाना का मकाम क्या है? वो खवातीन जो कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के लश्कर में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लश्कर में शरीक होंगी। और तकरीबन 8 या 9 वो ख़वातीन हैं जो गुज़िश्ता ज़मानों में थी और उन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। दोबारा वो रजअत करेंगी, इमाम के लश्कर की सिपाही बनेगी, इमाम की मुआविन और मददगार बनेगी। उन ख़वातीन में से एक नाम जनाबे सियाना का भी आता है। ये खातून जो कि ईमान और इस्तिकामत का पहाड़ बनी हुई है,
रिवायत क्या कहती है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की मंजिलों पर गए, जब रसूल खुदा उस जगह से गुजरे कि जहाँ पर सियाना और उसके बच्चों को जलाया गया था, तो जिब्रील चूँकि साथ में है, रसूल खुदा पूछते हैं कि इस जगह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू को तो मैंने कभी सूंघा ही नहीं है। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जनाब रसूल खुदा को सियाना का सारा वाक़या बताते हैं। इस सियाना का मकाम क्या है कि ये लश्कर इमाम ज़माना की ख़वातीन में से एक खातून होगी। बहरहाल जब सियाना को और उसके बच्चों को आग में जलाया जा रहा था, तो उस वक्त जनाब आसिया ये कहती हैं कि फिरौन, ये जलाना तेरा काम नहीं है, हाँ, ये जलाना तेरा काम नहीं है, ये सज़ा देना तेरा काम नहीं है, ये परवरदिगार का काम है। उस वक्त फिरौन और भी हैरान होता है कि मैं तो सियाना और उसके बच्चों को जला रहा था और ख़ुद मेरी ज़ोजा जो है वो ख़ुद मेरी मुखालिफ है। वहाँ पर फिरौन दोबारा क्या करता है, जनाब आसिया को मना करता है कि आसिया इस अकीदे से बाज आ जाओ, ये तुम क्या कह रही हो। वहाँ पर जनाब आसिया भी यही कहती है कि नहीं, मैं खुदा की तौहीद पर ईमान ले आई हूँ, मैंने उस सच्चे खुदा को पा लिया है। फिरौन यही कहता है कि नहीं आसिया, इस काम से बाज आ जाओ, देखो अगर मैंने सियाना को आग में जला दिया है तो सोचो कि मैं तुम्हारा भी वही हशर करूँगा। जनाब आसिया अपने अकीदे से बाज नहीं आती, तो वहाँ पर वो फिरौन जिसके बारे में कुरान क्या कहता है, वह फिरऔना ज़िल औताद, के वो फिरौन जो कि मीखों वाले हैं। क्यों ये कहा गया कि मीखों वाले, हाँ, कि इनका काम ये होता था कि जो कोई भी इनका मुखालिफ हुआ करता था उसके ज़मीन पर उसे लटाकर उसके हाथों में और उसके पाँव में मीखें, कीलें गाड़ दी जाती थी, और बेचारा फिर बगैर भूख के प्यास के जितनी देर तक वो तड़प तड़प कर वहाँ पर ही मर जाएगा। वहाँ पर फिरौन क्या कहता है जनाब आसिया से कि आसिया, मैं तुम्हारा वही हशर करूँगा जो कि मैं अपने मुखालिफों का किया करता हूँ। कौन सा हशर, कि यही कि मीखें गाड़ कर तुम्हें जिंदा इस तरह मार दिया जाएगा। लेकिन जनाब आसिया वहाँ पर क्या कहती है, क्या फिरौन जो सज़ा देना चाहते हो वो दो। देखिए कि वो फिरौन जो कि अपनी ज़ोजा को, इतनी प्यारी ज़ोजा को मोहब्बत जिससे करता है, जिसका आशिक है, उसको जब ये सज़ा दे सकता है, तो सोचिए कि वो बाकियों के लिए कितना सख्त होगा और कितनी सज़ाएं देता होगा। वहाँ पर रिवायात क्या कहती है, तवज्जो, रिवायात क्या कहती हैं कि जनाब आसिया को ज़मीन पर लटा दिया गया, हाँ, ज़मीन पर लटा दिया गया, उनके हाथों में मीखें गाड़ दी गई, हाँ, पाँव में मीखें गाड़ दी गई, और उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़े पत्थर को जनाब आसिया के सीने के ऊपर रख दिया गया कि ताकि वो इसके वजन से इस दुनिया से चली जाए। कुरान अब जब वहाँ पर जनाब आसिया की तारीफ करता है और उनके कौल को नकल करता है, तो देखिए कि वही कि ज़ोजाए फिरौन है, एक काफिर के घर में पल रही हैं, उसका रिज़्क खा रही हैं, उसकी ज़ौजियत में है, लेकिन कितनी बाईमान खातून है कि वहाँ पर जनाब आसिया के अल्फाज को कुरान कोट कर रहा है और क्या कहता है कि जनाब आसिया ने उस वक्त परवरदिगार से दुआ की। क्या दुआ की कि रब इब्नी ली बैतन फिल जन्ना, ए परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। हाँ, जो दुआ कर रही हैं वो क्या कर रही हैं कि ए परवरदिगार जन्नत में मुझे एक घर अता करना। नज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही, ए परवरदिगार मुझे फिरऔन से भी और इसके अमल से भी निजात अता कर। सिर्फ ये नहीं कह रही कि मुझे फिरऔन से निजात अता कर, सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ ये नहीं कह रही कि ए परवरदिगार, तवज्जो मेरी तरफ, कि ए परवरदिगार मुझे फिरऔन से निजात अता कर, यानी मौत अता कर जिससे मैं फिरऔन से निजात हासिल करूं। नहीं, दो चीजें परवरदिगार से मांग रही हैं। ए परवरदिगार मैं बेजार हूं फिरऔन से भी और इसके अमल से भी, गोया जो इसका किरदार है मैं उससे भी बेजारी का इजहार कर रही हूँ और ख़ुद इसकी शख्सियत से भी मैं बेजारी का इजहार कर रही हूँ। क्योंकि अगर कोई शख्स किसी के अमल से राज़ी हो जाता है तो गोया वो उसके अमल में शरीक हो जाता है। किसी के बुरे अमल को देखें तो क्या करें,
अगर आप उसको मना नहीं कर सकते हाथ से जुबान से, तो रिवायात और हदीस क्या कहती है कि कम से कम दिल में उस अमल से नफरत करें। हाँ, क्योंकि अगर नफरत नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, तो इसका क्या मतलब है, जो उसके बुरे अमल की, उसके हराम अमल की जो सजा है, उसमें आप भी उसके साथ शरीक हो जाएंगे। यही वो चीज है कि जिसको हम ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं और बार बार दोहराते हैं, और क्या कहते हैं, हम 3 चीजों का इकरार करते हैं। लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, परवरदिगार की लानत हो उस उम्मत पर, उस ग्रोह पर जिसने आप पर जुल्म किया। लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, जिसने जुल्म किया और शायद कत्ल ना किया। कातिल तो सिर्फ एक ही नजर आता है ना, शिमर नजर आता है, लेकिन जुल्म करने वाले बहुत थे। आपको करबला बुलाने वाले, हाँ, पानी को बंद करने वाले, हाँ, ख़याम को जलाने वाले, माल को लूटने वाले, बहुत सारे अफराद थे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लअनल्लाहु उम्मतन कतलत का व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का। जिसने आप पर जुल्म किया उस पर भी परवरदिगार की लानत हो, जिसने आपको कत्ल किया उस पर भी परवरदिगार की लानत हो। और तीसरी लानत किस पर भेजते हैं, लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, उस पर भी लानत हो। और देखिए, ज़ियारत आशूरा पर मैं पिछले साल पूरा अशरा पढ़ चुकी हूँ, आपके जहनों में मुतालिब होंगे कि ज़ियारत आशूरा किसी हमारी आपकी लिखी हुई नहीं है। ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। यानी अगर उसको बयान करने वाले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हैं, हदीस कुदसी का मतलब क्या है, वो चीज़ जो खुद खुदा ने बयान की है, खुद खुदा ने बयान की। लेकिन खुदा का हर बयान जो है वो कुरान के अंदर नहीं आया। हाँ, इमाम सज्जाद ने बयान किया, इमाम सज्जाद से इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से इमाम अली, इमाम अली से रसूल खुदा, रसूल खुदा ने जिब्रील, जिब्रील ने खुद खुदा से सुनकर इस चीज़ को आगे नरेट किया है। हाँ, तो क्या बयान करते हैं, लानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, खुदा की लानत हो उस उम्मत पर, उस ग्रोह पर, उस कौम पर कि जिसने आप पर जुल्म किया, जिसने आपको कत्ल किया। और तीसरी लानत उसके लिए, लानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, जिसने इस वाक़े को सुना लेकिन उस पर राजी हो गया। ज़रूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक उस 61 हिजरी से हो। अगर आज के ज़माने में भी कोई इंसान उस वाक़या करबला से राजी हो जाता है कि जो कुछ करबला में हुआ वो सब कुछ ठीक था, तो वो भी उसी लानत का मुस्तहिक करार पाता है। जब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, आप जानते हैं जाबिर का मकाम क्या है। हदीस किस्सा के रावी, करबला का पहला ज़ायर, 40 के मौका पर जो जनाब ज़ैनब से भी पहले करबला पहुंच जाता है और कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, उसे हम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं। कब्र हुसैन पर खड़े खड़े वहां पर अतिया ओफी से उन्होंने क्या कहा था कि मन अहब्ब कौमन, कि जो कोई किसी कौम से मोहब्बत करता है, किसी ग्रोह से मोहब्बत करता है, इंसान जिस चीज़ से भी मोहब्बत करता है, हुशिर माअहुम, जिस चीज़ से भी मोहब्बत करता है। हमारी मोहब्बत मनसब से है, मकाम से है, औलाद से है, ज़ौजा से है, शोहर से है, शोहरत से है, जिस चीज़ से भी है, या अपने इमाम से है। मन अहब्ब कौमन हुशिर माअहुम, जो कोई जिस से भी मोहब्बत करता होगा, हुशिर माअहुम, परवरदिगार उसी के साथ उसको महशूर करेगा। व मन अहब्ब अमल कौमिन, जो कोई किसी के अमल से राजी हो जाता है और उससे मोहब्बत करता है, उशरिक फी अमलहिम, वो उसी अमल में शरीक हो जाता है। यहाँ पर जनाब आसिया क्या कहती हैं, जनाब आसिया ने क्या कहा, रब इब्नी ली बैतन फिल जन्ना, ए परवरदिगार मुझे जन्नत में एक घर अता करना। यहाँ पर ही सब बैठे हुए ना, नज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही, ए परवरदिगार मुझे फिरऔन और उसके अमल से निजात अता करना। इससे पहले कि आसिया की रूह कब्ज हो जाती, रिवायात क्या कहती हैं कि एक मर्तबा मादी पर्दों को हटा दिया गया। एक तो रिवायत ये कहती है कि वो पत्थर जब जनाबे आसिया के सीने की तरफ आ रहा था, इससे पहले कि आसिया उस दर्द को महसूस करती, परवरदिगार ने क्या किया, उन तमाम मादी पर्दों को हटा दिया और जन्नत में जनाबे आसिया को उनका मकाम दिखाया।
जो उन्होंने दुआ की है, मकाम दिखाया। यही हाल शब आशूर शोहदाए करबला का भी है। जब शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब को जमा किया और एक एक की फहरिस्त को बयान किया, तवज्जो मेरी तरफ, एक एक फहरिस्त को बयान किया कि कल किस किस ने शहीद हो जाना है। हाँ, शोहदा की फहरिस्त बताई। देखिए, कोई भी जो आम दुनिया का लीडर होता है ना, वो ये कहता है कि मैं तुम्हें ये सहूलत दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हाँ, तो तब दुनिया उसके पीछे चलती है, ऐसा ही है ना। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर अपने असहाब से क्या कह रहे हैं? उन्हें ये नहीं कह रहे कि कल के दिन तुम जिंदा रहोगे। इमाम ने कहा कि ये बात यकीनी है कि कल के दिन तुम सब ने शहीद हो जाना है, लेकिन सलाम हो हमारा उन 72 शोहदा पर कि सब के सब फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। वो रिवायात आप जानते हैं कि शब आशूर इमाम अलैहिस्सलाम ने चिराग को गुल किया कि शायद कोई शर्मिंदगी को महसूस करे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदगी को महसूस करूंगा। इमाम ने चिराग को गुल कर दिया कि किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। कितना करीम इमाम है ना, कितना रहीम इमाम है। चिराग को गुल कर दिया और उसके बाद जब दोबारा चिराग को जलाया गया तो रिवायात क्या कहती हैं कि सब के सब असहाब जो 72 बावफा असहाब हैं, उन्होंने तलवारों को अपनी नियाम से निकाला हुआ है, अपनी गर्दनों पर रखा हुआ है और क्या कह रहे हैं कि ऐ मौला, अगर हमारी वफाओं पर यकीन नहीं है ना तो अभी हमारी तलवारें हाजिर हैं, इन तलवारों से हमारे सरों को कलम कर दीजिए। जब इमाम अलैहिस्सलाम को उनकी वफाओं पर यकीन हो गया, वो जो खालिस लोग थे ना, उन्हें चुन लिया गया। अब इमाम अलैहिस्सलाम जो बयान करते हैं कि हम अब उस मसरा में, उस मक्तल में पहुंच चुके, उन शोहदा की तादाद भी मुकम्मल हो गई। अब ना इनमें कोई शामिल हो सकता है, ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। उन 72 की जब तादाद वो मुकम्मल हो गई, वो शोहदाए करबला जब मुकम्मल हो गए, अब इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इमाम अलैहिस्सलाम का वो छोटा सा खुतबा शब आशूर का है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इरफ़उ रुऊसकुम, कि अपने सरों को ज़रा उठाओ और देखो कि परवरदिगार ने तुम्हारे लिए किस मकाम को रखा हुआ है। हाँ, मादी पर्दों को शब आशूर हटा दिया गया और उसके बाद तमाम असहाब बावफा ने एक एक करके अपने अपने मकाम को जन्नत में देखा। यही वजह है कि हबीब का चूँकि सिन बहुत ज़्यादा था ना, शब आशूर रिवायत क्या कहती है कि हबीब मुस्कुरा रहे हैं। हबीब एक संजीदा शख्सियत है, ऐसे नहीं है कि जो आम एक इंसान कभी हंस रहा है और कभी लहू व लाभ की बातें कर रहे हैं, और ऐसे नहीं है, एक संजीदा बावकार इंसान है। लेकिन शब आशूर ये देखा गया कि शब आशूर जनाब हबीब तलवार को सैकल कर रहे हैं और साथ मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा कि हबीब, ये आज कौन सी रात है? आज हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है और तुम मुस्कुरा रहे हो? तो वहाँ पर जनाब हबीब क्या कहते हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि परवरदिगार हमें कल कौन सा मकाम अता करने वाला है। यही वजह है कि वो जो रिवायत है रोज़े आशूर की, कि वो आशूर की रिवायत क्या है कि जब कोई इमाम अलैहिस्सलाम का सहाबी बावफा मैदान में जाता था, मुस्तनद रिवायत है कि वो क्या है, फयस्तक़बिलु रिमाहुम व सयूफुहुम अला सुदूरिहिम व अला वजहिहिम, कि जब वो मैदान जंग में जाते थे, सामने तलवारों का मुकाबला है, नेज़े आ रहे हैं, उन नेज़ों को कहाँ पर कबूल करते थे? अपने सीनों पर कबूल करते थे, क्योंकि इसके बाद जो मकाम मिलने वाला है ना, वो बेनज़ीर और बेमिसल है। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो उन तलवारों को, उन नेज़ों को सीने पर कबूल कर रहे हैं, अला वुजूहिम, किस इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि तलवार आ रही हो और उसके सामने अपने मुंह को रख दे, नेज़ा आ रहा हो अपना चेहरा सामने कर दे, हाँ, तीर आ रहे हो और अपने चेहरे को सामने रख दे। ये इस वजह से था कि शब आशूर इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके मकाम को बता दिया। अब इमाम अलैहिस्सलाम के शियों का मकाम क्या है, इमाम के मुहिब्बों का क्या मकाम है? एक बहुत खूबसूरत हदीस, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक बहुत खूबसूरत हदीस के अला व मन अहब्ब अलियन, जान लो, खबरदार, कि जो कोई भी अली से मोहब्बत रखता है, अली की मोहब्बत को अपने दिल में रखता है, ला यखरुजु मिनद दुनिया हत्ता यशरब मिनल हौज़िल कौसर, वो उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा कि जब तक कि वो हौज़े कौसर से
सैराब न हो ले। व याकुल मिन शजर तूबा, और जब तक कि वो शजर तूबा के फल को ना खा ले। व यरा मकामहू फिल जन्ना, और जब तक कि वो जन्नत में अपने मकाम को ना देख ले। यही वजह है कि ज़ाहिर है एक इंसान उसके सिरहाने इमाम अली अलैहिस्सलाम मौजूद हों, आइम्मा मौजूद हों, उसे हौज़ कौसर से सैराब कर रहे हो, शजरा तूबा के फल को अता कर रहे हो और उसे जन्नत में उसका मकाम अता कर रहे हो, किस बदबख्त का दिल चाहेगा कि वो ऐसी जन्नत में ना रहे। इसी वजह से क्या मिलता है कि अली के मुहिब्बों की जो मौत होती है ना, वो बहुत आसानी की मौत होती है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर ही पलते बढ़ते हैं, और उसके बाद वो वाक़या कि अब बहुत ज़्यादा उसमें तफसीलात का वक्त नहीं है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने एक अरसा तक ज़िंदगी गुजारी। हज़रत शुएब की एक बेटी से जनाब मूसा की शादी हो जाती है। अब बहरहाल एक अरसा तक जनाब मूसा उस सफ़े से गायब हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब जवानी की उस मंजिल में आ गए तो फिर परवरदिगार का हुक्म होता है कि फ़ज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। तवज्जो, फ़ज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि ए मूसा अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने फ़िरऔन के सामने जाना है और जाकर उसे तौहीद का पैगाम देना है। इधर फ़िरऔन को भी पता चलता है कि मूसा अपने भाई के साथ मेरे दरबार में आ रहे हैं और आकर मुझे तौहीद का दर्स देंगे। वहाँ पर क्या हुआ आप सब जानते हैं कि वो वाक़या कि फ़िरऔन ने अपने ज़माने में, उस ज़माने में जादूगरी बहुत ज़्यादा थी, उसने क्या किया, मुख्तलिफ़ किस्म के जादूगरों को बुलाया, जो बड़े माहिर जादूगर थे उनको बुलाया, और बुलाने के बाद क्या कहा कि तुम अपने जादू के ज़ोर से क्या करो, हाँ, रस्सियाँ बनाओ और उन रस्सियों को सांपों में तब्दील करो, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन सांपों को हज़रत मूसा की तरफ छोड़ देना। क्या होगा कि वो सांप हज़रत मूसा और हारून को खा जाएंगे। वही बात कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी कि एक इंसान को, अगर आम इंसान हो तो उसको जलाने के लिए कितनी आग चाहिए, आखिर क्यों इतनी आग रोशन की गई, क्योंकि जानते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। यहाँ पर भी कई सौ जादूगरों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम कई सौ रस्सियों से क्या करो, उन सांपों को बनाओ, और जब मूसा मेरे दरबार में आए तो इन सांपों को क्या करना, हज़रत मूसा की तरफ फेंक देना ताकि वो डस ले और मूसा का वहां पर ही खात्मा हो जाए। मूसा को खत्म करने के लिए कितने सांपों की जरूरत है, शायद एक सांप की। अगर एक सांप डस लेगा तो मूसा का तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी यही कि फ़िरऔन जानता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। बहरहाल जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उस वक्त फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं तो वही जादूगरों ने अपने जादू के ज़ोर से रस्सियों को सांपों में तब्दील किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ फेंक दिया। लेकिन परवरदिगार ने वहाँ पर हज़रत मूसा को मुअजिज़ा अता किया। वही मुअजिज़ा कि ए मूसा ये बता कि तेरे हाथ में क्या है। कहा कि ये मेरा असा है। इससे क्या करते हो? कहा कि अपने रेवड़ को चराता हूँ, कभी इस पर तकिया करता हूँ, वफ़ी हम आरिब उखरा, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मैं इस असा से करता हूँ। परवरदिगार का हुक्म होता है कि इस असा को फेंक दो। जब असा को फेंका गया तो वो बहुत बड़े एक अजदहा में तब्दील हो गया, जो उन जादूगरों के बने हुए उन सांपों को खाकर हजम कर जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वहां पर वो जादूगर, बस यहाँ पे ख़त्म करूंगी, वहां पर वो जादूगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मुअजिज़े को देखते हैं, मुअजिज़े का मतलब ही क्या है, मुअजिज़ा अंबिया को अता होता है। हम जब कई मरतबा ये कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे मुअजिज़ा हो गया, मुअजिज़ा सिर्फ अंबिया की खुसूसियत है। हाँ, आइम्मा अलैहिस्सलाम जब कोई चीज़ इसी तरह की करते हैं तो उसे मुअजिज़ा नहीं कहा जाता, उसे करामत कहा जाता है। हाँ, उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुअजिज़ा दिखाया तो उन तमाम जादूगरों ने क्या कहा कि आमन्ना बिरब्ब मूसा व हारून, कि हम रब्ब मूसा और रब्ब हारून पर ईमान
ले आए। अब यहाँ पर चूंकि वारिस मूसा की बात हो रही है, देखिए कि पूरा साल प्लानिंग्स होती रहती हैं, हाँ, कि शिया ये हैं, शिया वो हैं, इनकी आज़ादारी ये है, वो है, वो है, हाँ, यही छोटे छोटे जो सांप है ना वो फेंके जाते हैं, हाँ। लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तो इस अज़ा के अंदर इतनी ताकत होती है, मिंबर से वो कुछ बयान किया जाता है कि वो मूसा के अजदहा की तरह उन तमाम प्लानिंग्स को, उन तमाम साजिशों को खत्म करके रख देता है। आमन्ना बिरब्बे मूसा, आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, वही जादूगर जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े मुखालिफ बनकर आए थे, लेकिन कुरान क्या कहता है, वो वहां पर इकरार करते हैं कि आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लेकर आए हैं। दुनिया आज ये एतराज करती है ना कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ जब तशरीफ लाएंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, हाँ। दुनिया इतनी उनकी मुखालिफ है, बहुत कम अफराद हैं जो इमाम के चाहने वाले हैं। इमाम अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, हम उन्हें यही मिसाल देते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, जो इमाम के मुखालिफीन होंगे वही इमाम की करामात, इमाम का इल्म और उनके मुअजिज़ात को देखकर उन पर ईमान ले आएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल मसाइब की तरफ आते हैं। ये बाबुल हवाइज की मजलिस है, जनाब अब्बास अलमदार की मजलिस है। अब्बास कौन है? बहुत सारे अलक़ाबात हैं जो कि जनाब अब्बास अलमदार को हासिल हुए। अब्बास का एक लक़ब अलमदार है, अब्बास को बावफा कहा जाता है, अब्बास कम्र बनी हाशिम। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली मजालिस में जब जनाब अब्बास की कोई मजलिस हुई तो ज़रूर जनाब अब्बास के अलक़ाबात पर बात करूँगी कि अब्बास कौन है। अब्बास अलमदार है, अब्बास बावफा है, अब्बास कम्र बनी हाशिम है, अब्बास सक्काए सकीना है, अब्बास हुसैन की जवानी है। अब्बास कौन है? हिजाब ज़ैनब है, बच्चों का आसरा है, बीबियों का सहारा है, हुसैन का जोर कमर है। इन तमाम चीज़ों का नाम क्या है? अब्बास अलमदार। रिवायत क्या कहती है? रिवायत क्या कहती है कि जब असीरों का लुटा हुआ काफिला वापस मदीना पहुंचा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने काफिले को मदीना के बाहर रोक लिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बशीर से कहा, ए बशीर, तेरा बाप भी शायर था, तू भी बड़ी खूबसूरत शायरी करता है, जा मदीना के अंदर जा और एक मर्तबा हमारे आने की खबर दे। बशीर क्या कहता है कि मैंने ऊँट की हार को लिया, एक मर्तबा मदीना में दाखिल हुआ, मदीना की गलियों से गुजरता जा रहा है और बशीर कहता जा रहा है, ए मदीना वालों सुनो, कद कुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन करबला में शहीद हो गए। बशीर कहता है, जब मैं मोहल्ला बनु हाशिम में दाखिल हुआ, मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता कि जब एक घर का दरवाजा खुला, एक बुढ़िया निकली जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में असा का सहारा लिए हुए, और वो बूढ़ी क्या कहती है, आकर बड़े रौब से, बड़े जलाल से उस ज़ीन में हाथ डाला और हाथ डालकर क्या कहती है, ए बशीर तू ये क्या कह रहा है, जरा एक मर्तबा फिर के। बशीर ने दोबारा कहा, कद कुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन करबला में शहीद हो गए। कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ए बशीर ये बता मेरा अब्बास कहाँ पर था। रिवायत क्या कहती है, बशीर ने कहा कि ए बीबी, अब्बास के शिकवे न करो, पहले अब्बास शहीद हुए, बाद में हुसैन शहीद हुए। कहा अच्छा ये बताओ कि मेरे अब्बास को किसने किस तरह मारा। मेरा अब्बास तो बड़ा शुजा था, मेरा अब्बास बड़ा बहादुर था, ये बता कि मेरे अब्बास को कैसे मारा। कहा बीबी, दस्ते अदब को जोड़कर कहा, ए बीबी, अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की पुश्त पर संभल न सका। बीबी क्या कहती है, ए बशीर मैं नहीं मान सकती, तू बशीर, तू अब्बास को नहीं जानता, मैंने अब्बास को पाला है। अरे मेरा अब्बास गुर्ज को 2 उंगलियों में चलाया करता था, कैसे मुमकिन है कि गुर्ज सरे अब्बास पर लगे और अब्बास एक गुर्ज की ज़रबत से मर जाए। कहा बीबी मैं तुझे कैसे बताऊं
جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. اے بشیر یہ بتا کہ جب میرا عباس گھوڑے سے گرا, ارے بازو دے نہیں, عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا. ارے دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو عباس کی شہادت کے بارے میں یقین نہیں کرتی تھی. ایک تو خود مادر عباس بی بی ام البنین ہے. آج بی بی ام البنین کو پرسا دینا ہے نا کہ وہ بی بی ام البنین جو اپنے بچوں کو نہیں روتی تھی, آج جنت البقیع میں جاتی, 4 قبروں کے نشان بناتی. یہ میرے عباس کی قبر ہے, یہ میرے جعفر کی قبر ہے. 4 قبروں کے نشان کو مٹا دیتی اور اس کے بعد جو ماتم کرتی وہ صرف حسین کا نام لے کے کرتی. واہ حسین, واہ غربتا, اجرکم عند اللہ. 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی یقین نہ کرتی تھی کہ عباس کی شہادت ہوئی. ایک خود مادر عباس بی بی ام البنین ہے اور دوسرا مختار ہے. مختار کو کبھی بھی یقین نہیں آیا کہ میرے عباس کو اس مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا. جب تمام قاتلین کو لایا جاتا تھا نا, مختار ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا. جب ایک مرتبہ خولی کو لایا گیا نا, خولی کو سامنے بٹھایا, مختار کیا کہتے ہیں, مختار اے خولی بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا. خولی کہتا ہے مختار بتاؤں گا تو تو برداشت نہ کر پائے گا. کہا نہیں خولی مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. کہا کہ میں نے تیرے عباس کے بازوؤں کو قلم کیا. کہا بتا وہ کیا منظر تھا. کہا عباس جب خیموں سے نکلے مشک سکینہ کو پکڑے ہوئے تلوار لٹک رہی تھی. ارے عباس کا قد اتنا بڑا تھا, سب سے طویل قامت گھوڑے پر سوار تھے, لیکن اس کے باوجود پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے. ہائے جب عباس خیموں سے نکلے تمام فوج اشقیاء ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئی. عباس نہر فرات پر پہنچے, مشکیزے کو بھرا, دوبارہ اسی تیزی سے. عباس چاہتے کہ خیموں کی طرف جائے کہ عمر 7 کا اعلان ہوتا ہے یہ پانی خیام میں نہ جائے, عباس پر حملہ کر دو. لیکن کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ عباس پر حملہ کرے. خولی کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا لیا. جب عباس کا گھوڑا میرے پاس سے گزرا نا, میں نے بڑی تیزی سے عباس کے دائیں بازو پہ حملہ کیا. آئے دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے مشک سکینہ کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. ایک اور شکین نے حملہ کیا, بایاں بازو قلم ہوا. عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں پکڑ لیا. ارے عمر سعد کہتا ہے ارے جب تک یہ مشک سلامت ہے نا عباس کو کوئی روک نہیں سکتا. مل کر مشک پر حملہ ہوا, تیروں کی برسات ہوئی, تیر مشک سکینہ میں لگا, عباس کی حسرتیں بہہ گئی. ایک گورز سر عباس پر لگا, تیر آنکھ میں لگا. ایک مرتبہ عباس کا گھوڑا ہے ابھی بھی تیزی سے خیام کی طرف جا رہا ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا کہ جب امام حسین علیہ السلام لاش عباس پر پہنچے تھے, مولا کو لاش عباس بعد میں ملی. پہلے پہلا بازو ملا, پھر دوسرا بازو ملا. ارے ایسا کیوں ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا پہلے لاش عباس پہ آتے پھر بازو ملتے. آخر ایسا کیا ہوا کہ حسین پہلے بازوؤں کو اٹھا رہے ہیں پھر لاش عباس پر پہنچتے ہیں؟ ہوا اس طرح کہ جب عباس خیام حسینی کے قریب پہنچ گئے, ارے دور سے خیام نظر آ رہے ہیں, اپنے اسب با وفا سے کہتے ہیں اے اسب با وفا مجھے خیموں سے دور لے جا. آقا زادیا میرے گرنے کے منظر کو نہ دیکھے, سکینہ میرے گرنے کے منظر کو نہ دیکھے. گھوڑے کا رخ دوبارہ اشقیاء کی طرف کر دیا. سوچئے کہ وہ عباس جس کے بازو نہیں ہے, سر پہ گرز ہے, آنکھوں میں تیر ہے. ارے سوچئے اس عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا. ہر طرف سے حملہ ہوا,
आए आपने जनाब कासिम के मसाइब में सुना ना कि कासिम जब जीन से जमीन पर आए थे तो पामाल हुए थे। हाय अब्बास घोड़े की सीन पर ही पामाल हो गए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब लाश अब्बास पर पहुंचे, अरे जिस तरफ से उठाते थे लाश अब्बास टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह या महमूद बिहक़्क़ि मुहम्मद या अली बिहक़्क़ि अली या फ़ातिर बिहक़्क़ि फ़ातिमा या मोहसिन बिहक़्क़ि हसन या क़दीमुल इहसान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम। बाबुल हवाइज की मजलिस है, दस्त दुआ को बुलंद कीजिए। एक मर्तबा मरकद अब्बास पर काम हो रहा था, उलमा को ले जाया गया, मजदूरों को ले जाया गया, लेकिन जब कब्र अब्बास को देखा गया तो कब्र अब्बास बड़ी छोटी थी। उलमा से पूछा गया कि आप तो बयान करते हैं कि अब्बास का कद बड़ा था, आखिर ये कब्र अब्बास इतनी छोटी क्यों है? अरे उलमा ने सर को पीट लिया। अरे अब्बास पर वो जुल्म हुआ जो करबला में किसी पर न हुआ। परवरदिगार बाबुल हवाइज के सदके में सबकी हाजात को कबूल करना, सबकी दुआओं को मुस्तजाब करना, गमे करबला अता करना, इश्क हुसैन अता करना, मारिफत अली अता करना, सैयदा की रिज़ा अता करना, हिजाब